علیکم۔ آج میں آپ کو چاند گرہن کے اثرات کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ چاند گرہن 8 نومبر کو برج ثور میں 16 درجے پر لگے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس 16 درجے کے لگ بھگ کوئی جگہ ہے، ثور، اسکارپیو، لیو یا ایکویریس کے لیے اس چاند گرہن کے زیادہ اثر و رسوخ میں رہیں گے۔ توقع کریں کہ 6 ماہ تک آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ یا زیادہ شدید، زیادہ طاقتور واقعات رونما ہوں گے۔ چاند گرہن کیا ہے؟ چاند گرہن ایک بہت ہی شدید اور طاقتور پورا چاند ہے۔ یہ عام طور پر چاند سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے چاند گرہن کے موسم کے دوران ہم حکومت کی طرف سے بہت سی خبریں اور تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ عام طور پر واقعات اور حالات ہماری ذاتی زندگی یا اکثر اوقات ہمیں اس دوران زندگی کے اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اس بار خاص طور پر چونکہ ہمیں اس چاند گرہن کے ارد گرد ہونے والی بہت سی شدید توانائیاں ملیں گی جو کچھ دن پہلے ہی فعال ہو جائیں گی۔ چاند اس وقت ثور میں ہے۔ حقیقت میں واقعی اچھی خبر ہے، کیونکہ چاند لوگوں اور مجموعی طور پر معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ خوشخبری کی علامت ہے، کیونکہ چاند ثور میں خوش ہے۔ چاند بلند ہے اور چاند آرام دہ ہے۔ ثور ایک مقررہ نشانی ہے، اس لیے اس چاند گرہن کا اثر کچھ دیر تک رہنے کا امکان ہے۔ اس لیے چاند برج میں ایک بہت ہی مثبت مقام پر ہے، جہاں یہ خوش اور آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ ہمیں امید ملتی ہے، اس سے ہمیں روشنی کا اختتام دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے اس چاند گرہن کے آس پاس کوئی نیا اعلان ہو سکتا ہے۔ کچھ ضوابط یا قوانین میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں چاند کا ثور کی علامت میں اتنا آرام دہ ہونے کی وجہ سے ہم طویل مدت میں دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کچھ اچھی پیش کرے گی۔ ہمارے لیے اجتماعی اور انفرادی طور پر مواقع آئیں گے۔ اس چاند گرہن کے چارٹس کو دیکھیں۔ برج دلو ایکوس۔ برج دلو یہ چاند گرہن مکمل گرہن ہے، لہٰذا یہ بڑی تبدیلیوں، زندگی کے اہم واقعات کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ آپ کے چوتھے گھر میں ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں چوتھا گھر آپ کے گھر اور خاندانی معاملات سے متعلق کسی بھی چیز نمٹتا ہے، گھریلو زندگی سے نمٹتا ہے، لیکن عام طور پر چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے کہ گھریلو زندگی کیریئر کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت پیش رہتی اور آپ کو زندگی کے اہم فیصلے کرنے پر مجبور کیا ہے جو اگلے چند سالوں تک آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے۔ لہٰذا یہ تیسرا چاند گرہن ہے جو ٹورس اسکارپو محور پر ہو رہا ہے، جو آپ کی گھریلو زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چاند گرہن گزشتہ سال نومبر میں ٹورس میں ہوا تھا، پھر 30 اپریل کو ٹورس میں سورج گرہن ہوا، اور یہاں پھر چاند گرہن ہوا۔ چاند گرہن تو اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی گھریلو زندگی میں گزشتہ نومبر، اپریل کے آخر میں، اس سال مئی کے شروع میں اور اب اس چاند گرہن کے دوران 8 نومبر کو آپ کو ایک حقیقی خیال رکھنے والی تھیم نظر آئے گی جو پہلے ہی واقع ہو چکی ہے، اور اس سال شاید گزشتہ نومبر، اس لیے آپ یہاں اپنے گھر میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کر رہے ہوں، نیا فرنیچر حاصل کر رہے ہوں، یا کوئی پراپرٹی بیچ رہے ہوں یا خرید رہے ہوں، روم میٹ فلیٹ میٹ تلاش کر رہے ہوں۔ اگر اس کا تعلق نقل مکانی سے نہیں ہے تو شاید یہ ہو سکتا ہے آپ کے والدین سے متعلق۔ آپ کے والدین کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس وقت آپ کی زندگی میں نمایاں ہو سکتے ہیں، خاص طور پر چونکہ 10ویں گھر کا اثر ہے۔ چوتھا اور 10واں گھر ہمارے والدین کی شخصیات پر حکومت کرتا ہے، اس لیے ان کا بھی امکان ہے یہ آپ کی زندگی میں جذباتی تحفظ اور تحفظ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یورینس کے اس علاقے میں داخل ہونے کے بعد سے آپ پریشان ہیں۔ آپ کی زندگی اس لیے کہ آپ منتقل ہو چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ اچھی طرح سے نقل مکانی کر چکے ہوں،
आमतौर पर जिंदगी के इस शोबे में हलचल मच गई थी, इसलिए यहाँ इस चांद ग्रहण के दौरान आप आराम, हिफाजत और सलामती की तलाश करते हैं। इस वक्त आप अपनी ज़ाती अक़दार, रवायात, आपकी ख़ानदानी रवायात को नए सिरे से मुतय्यन कर रहे हैं, जिसकी आप अपने घर में पैरवी करते हैं। आपको भी बदल सकते हैं ताकि ये आपकी ज़िंदगी में ख़ानदान में बेहतर तौर पर फिट हो जाए। अब यहाँ चौथे घर में ज़ोहरा है, इसलिए अब कोई ख़बरें, कुछ गैर मुतवक्के हालात, वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, ख़ास तौर पर चूँकि ज़ोहरा आपके चौथे घर का हाकिम है। ज़ोहरा इस वक्त ज़्यादा मजबूत नहीं है। ठीक है, आपको पहुँचने में मज़ीद मेहनत करना पड़ सकती है। कोई भी हदफ, आपके घर और ख़ानदानी मामलात से मुताल्लिक़ कोई भी संग-मील, एक ही वक्त में ज़ोहरा और यूरेनस की मुखालफत, इसका ताल्लुक़ किसी दूसरे शख्स से भी हो सकता है जो आपके ख़ानदान से मुताल्लिक़ कोई ख़बर ला सकता है। वह आपकी कैरियर लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, तो शायद आपके कैरियर में पेश आने वाले वाक़यात, इसका बराह रास्त असर आपकी फैमिली लाइफ पर भी पड़ सकता है। अब यूरेनस ज़ोहरा, सूरज और अतार्द की मुखालफत करेगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको सफ़र करने की ख्वाहिश भी हो सकती है। हो सकता है आप अपने फ़लसफ़े और ज़िंदगी के उसूलों को नए सिरे से मुतय्यन कर ले, और इस ग्रहण के अर्द गिर्द आपके गैर मुतवक्के अखराजात भी हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आपके 8वीं घर का हाकिम अतार्द यूरेनस के खिलाफ है, इसलिए कुछ गैर मुतवक्के अखराजात भी हो सकते हैं। वो आपके बच्चों से मुताल्लिक़ हो सकते हैं। उनका ताल्लुक़ बच्चों की देखभाल से हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ मरकरी भी आपका 5वां घर है, लेकिन मजमूई तौर पर यह चांद ग्रहण आपके घर, एक मजबूत घर और ख़ानदानी बुनियाद के लिए एक नतीजा और ज़्यादा से ज़्यादा आगाही लाता है। कुछ राज की चीज़ें दरियाफ्त करें जो आपसे पोशीदा थीं, जो आपके ख़ानदान से मुताल्लिक़ है। शुक्रिया। पासस बुर्ज हूत पासस, ये चांद ग्रहण आपके 3रे घर में हो रहा है, और 3रा घर मवासलाती ख़बरों से मुताल्लिक़ फ़ैसला साजी के टेस्टों से मुताल्लिक़ है, और साथ ही आपके बहन भाइयों की ज़िंदगी में होने वाली अहम तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। यकीनी बनाएं कि आप गाड़ी एहतियात से चलाएं। अगर आप इस चांद ग्रहण के आसपास कार के ज़रिए सफ़र करने का इरादा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आम तौर पर चांद ग्रहण के मौसम के दौरान उसे आसान बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त के अर्द गिर्द गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ हो सकती हैं। आपको अपने मंसूबों को तब्दील करना पड़ेगा और मुतवक्के तौर पर आपको लचकदार होना पड़ेगा। लिहाजा आपको इस मखसूस चांद ग्रहण की तवानाइयाँ बहुत सीधी लग सकती हैं, क्योंकि टॉरस और वीनस दोस्त हैं, एक सिक्स स्टाइल से जुड़े हैं। अब आपके पास 3रा घर है, लिहाजा आपको एहतियात से गाड़ी चलाना पड़ सकती है। अहम फैसले बहन भाई करें। कजिन की शादी हो सकती है, बच्चे के साथ ज़िंदगी के अहम फैसले कर रहे हैं। अब सूरज आपके 9 घर में नुमाया है, इसलिए इस वक्त के अर्द गिर्द गैर मुल्की सफ़र हो सकता है और एडवेंचर की ज़रूरत है। किसी तरह की तौसी की ज़रूरत है, लेकिन एक ही वक्त में यूरेनस और चांद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यकीनी तौर पर कुछ ख़बरें सामने आ सकती हैं, या आम तौर पर आपके जहन में कुछ नए ख़यालात आ सकते हैं, ख़ास तौर पर चूँकि यूरेनस आपके 12वें घर पर हुक्मरानी करता है, लिहाजा शायद रूहानियत की तरफ आपका नुक्ता नज़र तब्दीली को अगले चंद हफ्तों या महीनों में इल्म नजूम में मज़ीद दिलचस्पी हो सकती है। अब मुश्तरी, आपका हुक्मरान अब भी पीछे हट रहा है। इसी वक्त आप अब भी अपने आप को नए सिरे से मुतय्यन कर रहे हैं, या शायद आप खुद को, अपनी शनाख्त, अपनी ताकतों और अपनी कमज़ोरियों को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अतार्द और यूरेनस इस ग्रहण के मुखालिफ होंगे, आपको घर के सामने की तज़ीन व आराइश में भी तब्दीलियां करने पर मजबूर कर सकते हैं। हो सकता है अब कुछ ठीक कर रहे हों, आपके घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाए और आपको ग्रहण का सामना करना पड़े। तब्दीली ख़ास तौर पर चूँकि मरकरी आपके चौथे घर पर राज करता है और यूरेनस अक्सर गैर मुतवक्के हालात लाते हैं। अब यहाँ अतार्द आपका 7वां घर भी रखता है, इसलिए शायद ये चांद ग्रहण आपके ज़ाती ताल्लुकात से मुताल्लिक़ भी कुछ हालात लेकर आए। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी अजीज़ा, किसी ऐसे शख्स को तलाश करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी जिसके साथ आपका ठोस रिश्ता हो। अब 3रा घर अक्सर औकात सीखने, पढ़ने, लिखने की ज़रूरत होती है, तो इसका ताल्लुक़ किसी भी नई तहरीरी मंसूबे, शायद पढ़ने के लिए किसी नए कोर्स से हो।
तीसरा और नवां घर, मुताला का नया कोर्स मुकम्मल करना, आपकी सनद हासिल करना। और अब चूंकि सूरज आपके छठे घर पर राज करता है, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप काफ़ी आराम करें। आप अपने आप पर ज़बरदस्ती ना करें। कोई ऐसी चीज़ तलाश करें जो अपने दिमाग और जिस्म को आराम दे, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका अपना दिमाग बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थका हुआ है। और आमतौर पर अपनी दिमागी सेहत का ख्याल रखिए। यहाँ 12वें घर फ़ाल है, लेकिन ज़ोहरा और यूरेनस भी मुखालिफ हैं। ज़ोहरा आपके तीसरे घर पर हुक्मरानी करती है ज़हनी मुहर्रिक के साथ, ताकि आप अपने दिमाग पर काबू पाएं। थके हुए हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मुहर्रिक हूँ, ताकि कोई ऐसी चीज़ जो आपको सुकून का एहसास दिलाए। आपके दिमाग के साथ साथ आपके जिस्म को छठे घर की सरगर्मी के साथ सुकून मिले। शुक्रिया।